हम लोग आपको सुने, क्योंकि सर ऑलमोस्ट 2 साल हो गया ज्वाइन करके और कभी आपको सुना नहीं, मतलब पॉपुलरली पीपल कॉल यू एज एशियाज वन ऑफ द टॉप चेक्स. So that today we will have a live discussion with you with questions and answers. Few questions from me and few questions from the people, the viewers out there. So are you ready, sir, for that? Yeah, I'm perfectly fine. I'm ready. Thank you. Thanks a lot, sir. Sir, and this session will last for, I don't know how much time it will last for, but definitely. I'm open to it. Thank you so much, sir. और सर बहुत ही लोग excited. Anyway, sir. So first of all, I want to ask you, how do you feel where you are today? आप जहाँ पे भी हो इस समय, how do you feel about your life, about your family, and of course your surrounding? How do you feel, sir? Definitely. I mean, I feel I'm very blessed. God has been very kind in this journey, and I mean, and most important for me is like I've been able to contribute to so many people's life. That is what drives me today. And I mean, I have read and I know that it is true. With power or with success comes responsibility. So now now what motivates me? I still work. Quite a lot. Or I don't compromise on my work. And sometimes people ask me. I get up at 3:30 to take a flight somewhere to 6:30, then do 2 to 3 day workshops. So people ask me, why do you do that? I mean, what drives me? Frankly speaking, what drives me is when I go to the meeting, I see the people. Who come with a lot of hopes, and they are facing various challenges in their life. So what drives me today is to bring a smile in their face. What can I do? Whatever little I've learned, whatever little experience I have, how can I contribute to other guys' life? That is what today, frankly, drives me. So, like, I'll give a small example. Day after tomorrow, I am having a one-day workshop in Guwahati. So, my leader, Tarun Maheshwari, he calls me. He said, sir, now due to the COVID thing, there's a new rule. If you come there, they will. The report what you will be carrying is not valid. So they will test you for COVID. They will quarantine you for 24 hours, and then only you will be allowed to step out of the hotel. I said, fine, yeah, I will come 24 hours earlier. I am ready to take the test and everything. Because again, when I see the people coming from so far with a lot of hopes in their heart, that they want to become something or they want to achieve something. So just I focus key, what can I do from my little experience and from my little knowledge, whatever very little knowledge I have, how can I contribute to them? So that is what today drives me. So definitely where I am, I feel very, very blessed all the time. I am very thankful to God for it. And I'm very thankful to so many angels who have been there in my life in the form of my mother, my various uplines, my various gurus, my various teachers, the family itself, the friends, and a lot of support of the downlines and so many people. So definitely it's a privilege to be here. But at the same time, I do understand that it is my responsibility now to contribute to many people's life. Like one of my guru, he used to say a thing: when you are new in this business, you need time. It will give you knowledge, it will help you in your growth. But when you are successful, the meeting needs you. So that's what I feel. And मुझे अभी किसी ने WhatsApp करा कि हिंदी में भी बताओ, तो ये मैं मिक्स करके बोल देता हूँ। मेरे गुरु हुआ करते थे, वो हमेशा मुझे कहते थे कि जब आप नए हो इस बिजनेस में, आपको मीटिंग की जरूरत है, क्योंकि आप मीटिंग में जाओगे तो आप चार्ज अप होगे, आप इंस्पायर होगे, आप आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ का होगा। और जब आप सक्सेसफुल बन गए तो मीटिंग को आपकी जरूरत है, ताकि आपकी सक्सेस से अदर लोगों को आप चेंज कर सको, उनकी एनर्जी को चेंज कर सको, एंड समवेयर डाउन द लाइन यू कैन इंस्पायर पीपल। सो दैट्स हाउ इट इज। सुपर्ब सर, हम लोग बहुत ब्लेस्ड है सर कि मौका मिला आप लोग आपके साथ काम करने का। My privilege, it is also my privilege. थैंक यू सो मच। नेटवर्क मार्केटिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों से इतना कनेक्ट हो जाते हैं सर, मतलब ये एक ऐसी फील्ड है, दिस इज वन सच प्लेटफॉर्म। इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट नेटवर्क एंड विद पीपल, दिस इज द प्लेटफॉर्म। द इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट इट, पीपल पीपल पीपल। लोग हर दिन लोगों के साथ ही सुबह उठती है और रात को सोते भी है लोगों के साथ ही सोते हैं। तो सर that's the best life I believe one can have, because
ना सिर्फ लोग बल्कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह, 2 दिन पहले अगर देहरादून था तो 3 दिन पहले अगरतला होता है, उससे 4 दिन पहले कलकत्ता होता है, उससे 2 दिन बाद गुवाहाटी होगा, फिर कोई और शहर होगा. सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बिजनेस कि इसमें कोई भी मोनोटोनस चीज नहीं होती. You keep on visiting different places, you keep on visiting, meeting different people, and that's what it is. It makes it so exciting. सुपर सर, मजा आता है सर. आप पोस्ट वोस्ट तो करते नहीं है सोशल मीडिया, लेकिन सर जिस तरीके से आप बता रहे हो अगरतला कोलकाता, जैसे बेडरूम किचन हॉल हो गया, वैसे आप बता रहे हो. यू ट्रैवल अ लॉट राइट सर? Oh yeah. Because I mean after अभी स्पेशली पैंडेमिक के बाद में जब से खुला है, हालांकि अभी दोबारा से आई मीन वो है, बट एनीवे जब से प्रोग्राम वगैरह होने शुरू हुए तो एवरीबडी वाज वेटिंग. सो पीपल ने धड़ाधड़ डेट मांगते गए, मैं भी धड़ाधड़ डेट देता गया. तो जूम आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो जैसे फर्क होता है ना, एक जो स्टेज का जो एक्टर होता है, जब वो ऑडियंस को देखता है तो मजा कुछ और ही आता है. तो जूम में फाइन इस समय भी आई डोंट नो 1000 2000 3000 कितने लोग सुन रहे होंगे, बट जो वो लाइव ऑडियंस का को जब आप एड्रेस करते हो, जब उनका रिएक्शन आता है, स्पॉन्टेनियस चीजें होती हैं, तो दैट्स व्हाट इज अ मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर मी. सो या आई लव दैट. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर. तो सर बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी अभी ज्वाइन किए हुए, आई एम डैम श्योर आधा से ज्यादा क्राउड अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होगा. तो सर बहुत सारे लोगों का जो पहला सवाल होता है कि सर सिद्धार्थ सर के लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आई? सिंपल भाषा में सर, हाउ डिड नेटवर्क मार्केटिंग केम एंड व्हाट वाज योर स्ट्रगल यू फेस्ड इनिशियली? दीस टू क्वेश्चंस सर इन द स्टार्ट. ओके ओके. मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग तब आया जब शायद कुछ लोग सुन रहे होंगे, शायद वो पैदा भी ना हुए होंगे, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ 1998 की. ओके, रादर 97 एंड की मैं बात कर रहा हूँ. See, once मैं अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में मैं क्रिकेट खेलता था. आई बीन अ कैप्टन ऑफ माय स्कूल, देन आई रिप्रेजेंटेड माय यूनिवर्सिटी, एंड सो आई वांटेड टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, बट ड्यू टू द माय नी इंजरी, माय स्पोर्ट्स करियर को मैंने आगे परसू नहीं कर पाया. तो जब मैं मेरे प्लेइंग डेज में था, एक बार तो मैं बॉम्बे गया था इंटर रेलवे खेलने के लिए. वानखेड़े स्टेडियम में हमारे मैचेस थे. तो वहां एक किताब बिक रही थी. उस किताब का टाइटल था लाइक गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर साइड ऑफ योर ब्रेन टू अचीव व्हाटएवर यू वांट. सो उस किताब ने मेरे को बड़ा अट्रैक्ट किया. मैंने वो किताब खरीदी, उसको पढ़ना शुरू किया. तो उसमें वेरियस टेक्निक्स थी कि कैसे हम अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं, लेवल में जा सकते हैं. थोड़े दिन बाद मुझे मौका मिला उस कोर्स को लाइव अटेंड करने का. और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 95 के आसपास. तो उस जमाने में वो कोर्स 6500 का था, 2 दिन का, एंड दैट टू नॉन रेजिडेंशियल. सो आप समझ सकते हैं, मतलब आज से 26-27 पहले 6500 का कोर्स, वो भी 2 दिन का. वो भाई, बट समहाउ आई मीन माय मदर गॉट मी एनरोल्ड, एंड वो कोर्स मैंने किया, फिर मेरी मॉम ने भी किया. तो वो जो उस कोर्स के जो इंडिया में सिखाते थे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से एसोसिएटेड थे. तो उनकी वजह से मुझे इस सिस्टम को देखने का मौका मिला. दैट वाज वे बैक इन 98, अर्ली 98 टू बी प्रिसाइज, अप्रैल 98, 3 अप्रैल 1998 आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री. अब बात करते हैं इनिशियल चैलेंजेस के. यार चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे, कुछ बताता हूँ. सबसे पहला क्या है, मेरा नेचर बहुत रिजर्व है. आज भी मैं सिर्फ जिन लोगों के क्लोज हूं उनके साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल. मैं सोचूंगा भी नहीं कोई बात बोलने से पहले, कोई काम करने से पहले. बट ऐसे लोगों की जो संख्या है वो गिनती पे है. बट बाकी लोगों से आई एम वेरी शाय ना, आई एम वेरी रिजर्व. सो इस वजह से मेरा फ्रेंड सर्कल यार बहुत लिमिटेड था. और स्पोर्ट्स से कनेक्टेड था, तो मेरे स्पोर्ट्स के दोस्तों के अलावा मेरा कोई सर्कल था नहीं. मेरी अपलाइन मेरी मदर थी. सो ऑब्वियसली रिलेटिव्स वर कॉमन. तो मेरी मॉम ने क्या किया, मैं जो उनके रिलेटिव्स थे उनको अपनी अलग लाइन में जोड़ लिया. जैसे शी स्पॉन्सर्ड हर सिस्टर, तो जो मेरा कजन है वो मेरा ऑटोमेटिकली क्रॉस लाइन हो गया. देन शी स्पॉन्सर्ड हर ब्रदर. तो मेरा मामा हुआ, तो मी एंड माय मामा, हमारा एज डिफरेंस 15-16 साल का है, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. सो वो अलग लाइन में चले गए. तो मैं किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर नहीं कर पाया. मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा लिमिटेड था. तो एक ही बहुत बड़ा चैलेंज मैंने उस समय फेस किया, कॉन्टैक्ट्स का. जो जैसे लोगों को मिथ होता है कि ये इस बिजनेस में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं. ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा होता तो आज मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता, राइट. तो मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत लिमिटेड थे, कुशल. दूसरा यार मेरे साथ में चैलेंज क्या था, उस समय मेरे कॉलेज से, मेरे घर से जो कंपनी का ऑफिस था जहां प्रेजेंटेशन होती थी, वो करीब 24-25 किलोमीटर दूर था. तो दिल्ली के ट्रैफिक में 1.5-2 घंटे लगते थे एक वन वे वहां जाने के लिए, उनको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, अपॉर्चुनिटी मीटिंग दिखाने के लिए. अब मैं रोज 30-30 लोगों को इन्वाइट करता था. रोज मुझे 30 लोग हाँ बोलते थे. एंड
96% टू 97% यार कोई नहीं आता था। मैं अकेला प्रेजेंटेशन बार बार एक ही मीटिंग में बार बार सुन के जाता था। दूसरा, अगर मेरा दिन कोई बहुत अच्छा जाए तो एक आधा गलती से कोई आ जाता था। तो पहला मेरा पूरा महीना ऐसे ही बीत गया। मेरा चेक आया 155। मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं डेली को भाई आज आज कॉल कर रहा हूँ, कल शाम की मीटिंग के लिए 30 लोगों से जब तक मैं यस नहीं करता था, मैं कॉल किसी न किसी को पकड़ता ही रहता था, कॉल करता रहता था। तो डेली में 30 लोगों को कम से कम रोज इन्वाइट करता था। दूसरे महीने का मेरा चेक आया 139 रुपए का, टू बी प्रिसाइज 139 रुपीज। आप मुझसे पिछले महीने का चेक पूछोगे, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्टली, लेकिन ये चेक मैं कभी भूल नहीं सकता। ओके। और जब 2 महीने ऐसे चेक आए तो जो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने मेरा कमाल का, उन्होंने जो मुझे बातें बोली, बड़ी कमाल की बातें बोली। उनमें से मैं कुछ तो आपको मर्यादा के तहत बोल भी नहीं सकता, लेकिन जिस उसका क्या था, यार तू तो बातें करता है, इसमें लोग बड़े पैसे कमाते हैं, उस समय हजारों रुपए कमाते हैं यार, तो 150-150 रुपए का तेरा चेक है, रोज तू जाता है भाई, विल नॉट डू दिस बिजनेस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज क्या था, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इंडस्ट्री में कोई कैरियर बनाया जा सकता है। एट द मोस्ट क्या, थोड़े ठीक है साइड पॉकेट के लिए, पॉकेट मनी के लिए काम कर लो, जैसे स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो ठीक है भाई, थोड़ा काम किया पॉकेट मनी आ गई है। जैसे हाउस वाइफ होती है भाई, ठीक है थोड़ी बहुत हस्बैंड से इधर उधर चीजें लेती है तो पॉकेट मनी। सो इसको ऐसे ही देखा जाता था, स्कीम के तरीके से देखा जाता था। कोई सोच नहीं सकता था उस समय कि इस बिजनेस के तहत कोई कैरियर भी बना सकता है। सो यही एक माइंडसेट था। सो ये काफी सारे चैलेंजेस थे जो मैंने इनिशियल लेवल पर फेस किए। वाह सर, आजकल मैं देखता हूँ लोग थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे 2-3 प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलता है, उन्हें लगता है दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो सर जैसे आपने किया, मैंने 121 प्रेजेंटेशन की थी तब जाके पहला लॉगिन मिला था सर। और सर मेरे हिसाब से, जैसे आपने एक चीज हमेशा आप बोलते हो कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कुछ भी करने के पहले द माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जब आपको फेलियर मिला तो सर आपका जो माइंडसेट था वो कितना स्ट्रांग था? हाउ इंपॉर्टेंट इज माइंडसेट इन योर इनिशियल डेज इफ यू हैव गॉट द विजन? देखो यार, मैं तो ये कहूंगा माइंडसेट इनिशियल डेज में ही नहीं, जब तक आप जियोगे आपको एक ही चीज बचाएगी, आपका माइंडसेट। करेक्ट। क्योंकि क्या है, चैलेंजेस हमें ऐसा लगता है कि शुरू में चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं, बाद में कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस के स्वरूप बदलते रहते हैं। या बिजनेस के अलावा लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, मतलब बिजनेस के बाद भी एक लाइफ होती है। तो देखो, चैलेंजेस तो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा पहला चैलेंज क्या होता है, उसके लिए सबसे पहला चैलेंज होता है उसको स्कूल जाना, सुबह उठना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जितने भी आप जो छोटे बच्चे होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 साल, जब आप उन्हें उठाते हो स्कूल जाने के लिए, तो लाइक आई रिमेम्बर माई सन, वो आज भी पॉटी में बैठ के सोता है। पहले 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं उसको, तो वो उसके लिए एक चैलेंज होता है। फिर वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसके लिए होमवर्क बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है कॉलेज में, तो फिर कॉलेज में करियर बनाने का चैलेंज आ जाता है। फिर लाइफ में चैलेंजेस हमेशा चलते थे, चलते हैं, चलते रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर माइंडसेट की। इनिशियल डेज में आपको क्या चीज, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए? आपका माइंडसेट सिंपल होना चाहिए कि इस बिजनेस में, जैसे अगर मैं उस समय की बात करूं, देखिए हमारे सामने इतने उदाहरण नहीं थे कि लोग इतने सक्सेसफुल हैं, उतने सक्सेसफुल हैं। उस समय मैं 98 की अगर आपको बात बताऊं, 60-70 हजार रुपए महीने कमाने वाले ही लोग थे, लेकिन उस समय 60-70 हजार रुपए भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और लेकिन आप गिनती पे गिन सकते थे कि कितने कितने लोग हैं। तो गाड़ी वाड़ी ये वो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आज क्या, आज इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इनिशियल डेज में जो आपको माइंडसेट बनाएगा, आपको सिंपल सी एक चीज देखनी है कि इस इंडस्ट्री ने, इस कंपनी ने इतने लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। यानी कि यहाँ पर सक्सेस है। जब यहाँ पर सक्सेस है, इन लोगों ने किया, तो मैं भी कर सकता हूं। जैसे मेरा हमेशा मानना है, सक्सेस इज अ लर्नेबल स्किल। सफलता एक ऐसी चीज है, जो वो स्किल है जिसको आप सीख सकते हो। कि भाई आप ऑब्जर्व करो, जो लोग सफल है वो क्या कर रहे हैं, आप इजीली सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, ऑब्वियसली आपको रिजेक्शन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आपने उससे डरना नहीं है, आपने उस स्टेज को पार करते जाना है। और वो कब होगा, जब आप यहां से स्ट्रांग होगे। एंड जनरली क्या होता है, हम लोग इमोशनली बहुत वीक होते हैं। वो अप्रोच करते हैं अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, जब वो उनका मजाक उड़ाते हैं या वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। वी शुड लुक एट इट प्रोफेशनली, राइट। कि मैंने आपको ये चीज बताई, आपको ये चीज समझ में आती है, बढ़िया, नहीं आती, इट्स अप टू यू, बट आई विल कीप ऑन गोइंग। सो दिस शुड बी द माइंडसेट। उस समय के मेरे जितने भी दोस्त थे, मैंने सबको ये बिजनेस बताया।
और कोई भी मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आया। आज वही मेरे दोस्त है, आज फोन करते हैं, जब उनका कभी कभी फोन आता है कहाँ है, मैं फोन नहीं उठाता, फिर मैं कहाँ था, यार यार प्रेजेंटेशन में था, अच्छा कहाँ है, बैंगलोर हूँ, अच्छा कहाँ है, चेन्नई हूँ, अच्छा कहाँ है, आज यहाँ हूँ। यार तेरे मजे हैं यार, तू कभी यहाँ होता है कभी यहाँ होता है। मैंने कहा भाई ये मजे तेरे भी हो सकते थे, बट यू ऑप्टेड फॉर अ सेफ ऑप्शन। तुम एक सेफ जॉब में गए, या तुमने अपने पिताजी की सेफ दुकान पे बैठना पसंद किया। ओ भैया, आई टुक द रिस्क एंड दैट्स व्हाई हियर आई एम। सो वो माइंडसेट होना कि कम वॉट में, आई मीन आई विल बिकम सक्सेसफुल, और हर एक नो के बाद में दुगनी डिटर्मिनेशन से जाना, दैट इज, सो इस टाइप का माइंडसेट है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। रिजेक्शन शुरू से थी, है और रहेगी, इससे आपको डिजेक्ट नहीं होना, आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। सो जस्ट कीप ऑन गोइंग, बेसिक सेम रहेंगे, कीप ऑन शोइंग द प्लान, कीप ऑन मूविंग सो दैट यू बिकम सक्सेसफुल। यस सर, तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया माइंडसेट को लेके। तो जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे सुन रहे हैं, सो सर ने एक चीज बोली आज माइंडसेट को लेके, वी हैव टू हैव दैट। सो ऑफ कोर्स सर, जब माइंडसेट ठीक होता है तो वी आर रेडी, मतलब हम लोग रेडी है। कुछ लोग सर कॉल करते हैं, बोलते सर आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, मतलब दे आर प्रिपेयर्ड टू डू व्हाटएवर इज गोइंग टू बी टेकन टू गेट सक्सेस। तो सर यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन योर चेक वाज नॉट सो बिग, यू वर हैविंग अ वेरी स्मॉल चेक, दिखाने लायक भी नहीं था, आपने ऑब्वियसली आपके एक तो सिस्टम हमारे अपलाइन ने बनाया होता है, एक सिस्टम आपको खुद डेली फॉलो करना पड़ता है। 24 आवर्स में आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस आप सिर्फ सिस्टम हो तो अपलाइन के सिस्टम से जुड़े हो, आपको खुद का भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना है या फिर वो किताबें पढ़नी है, आपने भी एक सिस्टम बनाया होगा अपने लिए, जिसके कारण वो करते 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 फिर आप एक टेस्टिमोनी बन गए। सिस्टम क्या यार, जहन में यही सब चलता, हर समय यही चलता था। जब मैंने 98 में शुरू किया था तब भी, और जब 2008 में मैंने वेस्टीज शुरू किया था तब भी, माइंड में एक ही चीज चलती थी, व्हाट नेक्स्ट हु, किसको लिस्ट बनाऊं, किसको प्रोस्पेक्टिंग करूं, किसको प्लान दिखाऊं, 24 घंटे तो दिमाग में ये चलता था। उसके बाद जब भी समय मिलता था, जैसे 98 की अगर मैं शुरू की बात करूंगा, फिर 2008 की बात करूंगा। 98 में जब भी बीच में समय मिलता था, ट्रैवलिंग करते हुए किताब पढ़ने की कोशिश करता था, राइट, क्योंकि उस समय और कोई मीडियम नहीं होता था, ऑब्वियसली कोई सोशल मीडिया तो था ही नहीं उस समय, कोई इंटरनेट ही नहीं होता था। तो उस समय किताब पढ़ने की कोशिश करता था ताकि खुद को चार्ज रख सकूं, कई चीजें सीख सकूं। ट्रेनिंग कभी मैंने कोई आज कभी मिस नहीं करी जिंदगी में, कभी भी। और जो भी ट्रेनिंग अटेंड करी, उसके नोट्स बनाए और उसके बाद रिवाइज करके उसको अपने अंदर उतारने का प्रयत्न किया। ये था 98 में। 2008 में जब मैं वापस आया तो चैलेंज दूसरा था, लोगों ने कहा दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा। और उस समय अगर आप उठा करके देखो, पूरे देश में बहुत चैलेंजिंग टाइम था इस बिजनेस को लेकर के। कंपनियां बंद हो रही थी, बहुत सारी कंपनी फ्लाई बाय नाइट हो चुकी थी। लोगों को ऐसा एक विश्वास नहीं था कि लाइक इस इंडस्ट्री में कोई रियल सक्सेसफुल हो सकता है, और ऐसी एक धारणा थी कि इस बिजनेस में सिर्फ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखाने के लिए उनके पास खास कुछ होता नहीं है। सो उस समय जब मैं काम किया करता था, तो मैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं हमेशा मेरे कुछ सेट ऑफ सॉन्ग्स हैं जिनको मैं सुनता था, लाइक बड़ी जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। 98 की बात करूं, तब से मैं एक गाना सुनता आया हूं जिसको मैं मेरा एंथम बोलता हूं, सिद्धार्थ एंथम बोलता हूं। दैट इज सिंपल, आई मीन जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, यस बॉस का गाना है, शांत तारे तोड़ लाऊं, राइट। सो वो मैं आज तक सुनता हूं। और 2008 में आया तो सिंग इज किंग आई थी, तो मैं हमेशा, जब मैं सिंग इज किंग सिंग इज किंग सिंग इज किंग सिंग इज किंग मैं हमेशा सुनता था। और बीच में मुझे जब भी जैसे ही मेरे को समय मिलता था, सीएनटी खत्म हुई, कुछ खत्म हुई, तो एक सेट ऑफ मूवीज थी जिनको मैं देखा करता था। जैसे गुरु मूवी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, या ऐसी आज की डेट की अगर बात करूं, एमएस धोनी हो गई, भाग मिल्खा भाग हो गई, और ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग मूवीज हैं। सो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो अब दिन भर आपने काम किया, जैसे मोबाइल यूज होता है, उसकी बैटरी ड्रेन आउट होती है, हमारी बैटरी, हमारी एनर्जी भी ड्रेन आउट होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ। सो उस रिचार्जिंग के लिए मैं अपने वर्ल्ड में रहता था, अपने म्यूजिक में, अपने वीडियोज में। मैं फालतू गॉसिप में उसमें मैं रहता ही नहीं था। मेरे को अब काम खत्म हो गया, अब मैं दुनिया से, मेरा कनेक्शन कट, मेरा ईयरफोन मेरे कान में लग गया, मुझे पता नहीं अब कहाँ जा रहे हो। अब जब अगली मीटिंग होगी तो मेरी बैटरी 100% चार्ज होगी एंड आई विल बी रेडी। So this is what I used to do. So this is how I handled these things. So mindset 24 घंटे यही कि what next, किसको प्लान दिखाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। So ये रहता था। So self talk के ऊपर काम करता था। सुपर्ब सर, सुपर्ब सर। सो सर यहीं पे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, योर बिलीफ फैक्टर टुवर्ड्स सिस्टम। सिस्टम के ऊपर आपका बिलीफ फैक्टर क्या है, कितनी ताकत है सिस्टम के अंदर? सिस्टम को लेके सर आपसे एक सवाल पूछना था। यार सिस्टम के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। देखो हर चीज का एक सिस्टम है। अभी जैसे क्या है, आप ये मीटिंग वाया इंस्टाग्राम मेरे साथ में कर रहे हो, तो अभी इस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं। अगर हम ये सिस्टम हटा दें, क्या कोई तरीका है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कोई तरीका नहीं है, राइट। तो दैट इज अ सिस्टम इटसेल्फ।
देन अगर मुझे इस समय आईपीएल चल रहा है, अगर मुझे आईपीएल देखना हो तो उसका सिस्टम है मेरे पास में, या तो नेट होगा या फिर मैं टीवी के ऊपर उसको देखूंगा। वो दोनों सिस्टम नहीं होंगे तो मैं आईपीएल नहीं देख सकता। अगर मुझे फ्लाई करना है, मैं अपने पंख लगा के नहीं उड़ सकता, बट प्लेन में बैठ के उड़ सकता हूँ, सिर्फ उड़ने का ये सिस्टम है। तो हर चीज का देखो आप, बहुत सिंपल है, एक सिस्टम बना हुआ है। सेम वे इस बिजनेस में भी, इस इंडस्ट्री में भी काम करने का एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को फॉलो करे बिना आपको या तो सक्सेस मिलेगी नहीं, और अगर गलती से मिल भी गई तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो बिना सिस्टम के तो कोई भी इंसान कुछ है ही नहीं। सो एवरीथिंग इज सिस्टम इटसेल्फ, विदाउट सिस्टम नथिंग वर्क्स। एंड यही पावर है सिस्टम को फॉलो करके। अगर सिस्टम सेंट्रिक ना हो फिर तो ये हो जाएगा कि यार ये एक दो लोग टैलेंटेड है, यही कुछ कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। बट सिस्टम की ताकत क्या है कि आज एक नेत्रहीन आदमी, आज एक अंधा आदमी जो देख नहीं सकता, आज उसका चेक 1.5 लाख रुपए है, सिस्टम को फॉलो करके। एक आदमी जो सुन बोल नहीं सकता, आपको एक तरीका फॉलो करना है, तरीके सही होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं होती है, तरीका गलत होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो सर ने वो किया। तो सर ऑब्वियसली जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हुई, 30,000 का चेक भी बना होगा, 40 का भी चेक बना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं 30 और 40 में कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पैसा पॉकेट में नहीं होता, पैसा दिमाग में चढ़ जाता है और उन्हें लगता है अब तो पूरा आएगा ही आएगा। एंड दैट्स वेयर दे गेट दैट फर्स्ट डाउनफॉल। एंड व्हेन दे गेट द डाउनफॉल दे क्विट। द फर्स्ट फेज व्हिच मैं हमेशा सर 3 बार कहता हूँ ये चीज बिजनेस के अंदर। पहले फेज में क्या होगा, नेटवर्क बनाओगे वो गिरेगा। दूसरे फेज में आप दोबारा नेटवर्क बनाओगे, दोबारा गिरेगा, इस बार लीडरशिप के कारण गिरा है। तीसरी बार दोबारा बनाओगे, अब अगर गिराने की कोशिश भी करोगे ना तो भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि आपने वो छक दिया है, मतलब यू हैव टेस्टेड दैट थिंग। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज when you are in momentum not to get distracted. You have to be more focused, you have to think about more bigger vision. लोग, a guy has gone to point B, अब वो point B मजे कर रहा है, he has to think about what next from here. So how important is that for you, sir? Because when you were earning 50,000 and 1 lakh, आपको भी तो विजन मिला होगा 10 लाख का. That's the most important thing. see, I believe that short-term success you should always treat it as a motivation, right? And short-term failure you should learn, you should take it as a maturity gain कि ये मेरा short-term failure है, इससे मेरा maturity gain क्या हुआ, यानी कि मैंने इससे सीखा क्या। एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस जो है ये, इसको हमें हमेशा एक मोटिवेशन के तौर पे लेना है। यार ये काम किया था, गुड यार, 50 में पहुंच गया, अब बढ़िया, अब 1, अब 1.5, अब 2, अब 2.5, अब 3। सो दैट्स हाउ, आई मीन, लाइफ शुड कीप ऑन ड्राइविंग यू। एंड दैट्स व्हाट, आप किसी भी फील्ड में देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा, आई मीन, दे आर ऑल ड्रिवन। लाइक आई रिमेम्बर, मैं बहुत पुराने, मैंने गावस्कर जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा कि जब आप रिटायर हुए, आई मीन यू स्कोर उस टाइम आप, आई मीन आप सबसे पहले थे 10,000 रन बनाने वाले, आपने उस समय इतनी सेंचुरीज किसी की नहीं थी, आप आराम से 2, 3, 4 साल और खेल सकते थे, 5, 6, 7, 8 सेंचुरी और बना सकते थे, 4, 5 हजार रन और बना सकते थे। उन्होंने कहा देखो जी, आपने कब डिसाइड किया, हाउ यू डिसाइड दैट यू वांट टू रिटायर? उन्होंने कहा कि जब 4:30 बजे गेम खत्म होता था, 4 बजे मेरी जो नजर ना घड़ी पे जाने लग गई, तो वहां से मुझे पता लग गया, मैंने कहा भाई अब आप बाय बाय बोल दो। सेम थिंग मैं 4 महीने पर पहले, 20 दिन पहले, आई वॉज वॉचिंग विराट इंटरव्यू विद माई सन एज ही इज परस्यूइंग हिज कैरियर इन क्रिकेट। सो ही सेड द सेम थिंग, कह रहा जिस दिन अंदर से एंथू नहीं आएगा ना, उस दिन मैं परसों नहीं करूंगा। सो अंदर का जो एंथू है, असली काम तो वही कराता है। एंड वो अंदर का एक एंथू कि यार आज अब कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए एक्साइटमेंट रहना, फ्लाइट पकड़नी है, अलार्म से पहले 3 बार आंख खुलना, अरे यार कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ। तो लाइक इट इज, यू आर गोइंग टू अ डेट एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, एंड यू आर सो एक्साइटेड, आई मीन यू कैन नॉट वेट। सो सेम एक्साइटमेंट जब आपको आपके नाम की होती है, काम की होती है, तब आपको सफल बनने से कोई डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू। सो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। And that's what it is. And वो आप अगर करते जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा, और जो आपको मिल रहा है अगर आप उसी में खो जाओगे, देखो आप कोई भी आदमी का है, आप काम से किसी, मैं हमेशा कहता हूँ वर्क इज अ गेटवे ऑफ सक्सेस। सो आपका जो कर्म है वो गेटवे है जो आपको सफल बनाएगा। सो आप सिर्फ कर्म करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिलती जाएंगी। उसको एंजॉय जरूर करो, डेफिनेटली एंजॉय करो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसी को उसमें सोल डूब जाओगे तो आप कर्म से हट जाओगे। उसको एंजॉय करते हुए बी मोर फोकस ऑन व्हाट यू सपोज टू डू, ऑन योर सक्सेस, बी मोर फोकस, देन आप कंटिन्यूअसली ऊपर जाओगे एंड बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी लाइफ में जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो, एंड इट विल बी अमेजिंग जर्नी। सुपर्ब सर, डेफिनेटली सर। सर आपने एक लाइन अभी ऐड किया था पिछले एक आंसर के अंदर, पेशेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
डेफिनेटली सर, मैं भी इसको बहुत अच्छी तरीके से अग्री करता हूँ। यूथ के अंदर बिगेस्ट जो प्लस पॉइंट है वो है एक्साइटमेंट, मतलब वेस्टीज मिली है, आई मीन नेटवर्क मार्केटिंग मिली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू पेशेंस लेवल, when they don't get a sign up या फिर they get a rejection, they don't have that much of patience. एंड सर आई देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग आज 40 50 उम्र के साल में ज्वाइन कर रहे हैं। देयर आर पीपल एट 70 years they have joined network marketing thinking one day they will also be on 1 crore rupees. मतलब look at that. So how important is sir patience? That was my next question to you. How important is patience for a youth especially sir? इट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली फॉर एवरीबडी, बट यूथ के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि उस उम्र में ना ठहराव नहीं होता, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। अब हाउ इंपॉर्टेंट इज पेशेंस इज सिंपल से कुछ सवाल पूछूंगा आप और मैं। आप अगर इतने बड़े हुए तो एक दिन में नहीं हुए, आपको 25 साल लगे इतना बड़ा होने में। अगर 25 दिन में 25 महीने में आप इतने बड़े नहीं हो सकते, चाहे आपको कोई भी कुछ भी पिला दिया जाए, कोई भी मल्टीविटामिन दे दिया जाए। सो हर चीज का समय के साथ होती है। इफ अ चाइल्ड रिमेन्स इन द होम फॉर 9 months, सो इट इज देयर फॉर द 9 months एट द मोस्ट, एक आध महीना कम हो सकता है, बट वो 9 दिन में द चाइल्ड कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द वूम। सो पेशेंस इज ही हर चीज का आधार है। आज अगर आप बीज बोते हो तो आप कल फल नहीं पा लेते। आप आज ने बीज बोया है, उसका एक सिस्टम है, उसको समय लगेगा थोड़ा सैपलिंग बनने में, तो नन्ना पौधा बन के आएगा, उसकी टेक केयर करते हैं, देन वो एक हर चीज का प्रोसेस है। सो नेचर से अगर आप देखो, नेचर हमें हर चीज में पेशेंस ही सिखाती है। बिना पेशेंस के तो भाई कुछ है ही नहीं। एंड अगेन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि दिस बिजनेस इज अ गेट रिच क्विक सिस्टम। दिस बिजनेस डेफिनेटली इज गेट रिच सिस्टम बट नॉट गेट रिच क्विक सिस्टम। हाँ, क्विक सिस्टम हो सकता है इन कंपैरिजन टू यहाँ 20 साल नहीं लगेंगे, वहां पर क्विक है। लेकिन अगर पहले महीने ही कोई व्यक्ति जुड़ के सोचे मेरा पहले महीने का चेक 50,000 हो या 1 लाख हो, तो ये नहीं होगा। ये अगर मेरे साथ हुआ मेरी सेकंड इनिंग में, क्योंकि मुझे पुराना एक्सपीरियंस था, मेरी पुरानी थोड़ी टीम थी, मुझे उसका एडवांटेज मिला। तो अगर जेन्युइनली कोई शुरू करेगा, उसे इंडस्ट्री को समझने में, काम करने में, नेटवर्क बिल्ड करने में समय लगेगा। और ये इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी सक्सेस से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो जल्दी सक्सेस की अगर नींव सही नहीं होगी, जैसे कई लोग इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कम ज्वाइन विद मी एंड आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। वो बहुत जल्दी में वो क्या कर रहे हैं, बल्क बाइंग करा रहे हैं टीम को, जिसका आधार ही गलत है। सो नेटवर्क को बिल्ड करने में, नेटवर्क को एजुकेट करने में समय लगेगा, एंड आपको पेशेंटली वो समय देना चाहिए। बिकॉज आप जितना समय दे करके सिस्टम के ऊपर अपना नेटवर्क खड़ा करोगे, वो उतना मजबूत बनेगा, और जितना मजबूत बनेगा वो उतना ज्यादा लंबे समय तक आपको खिलाएगा, आपको सफलता देगा। सो उसमें शॉर्टकट का, लाइफ में शॉर्टकट का कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई सीन है ही नहीं। You have to grind yourself. It's a process which you need to follow. When you will follow, then and only then success will be yours. Otherwise, इधर उधर शॉर्ट टर्म मीन्स से अगर सक्सेस आ भी जाती है तो फिर वो टिकेगी नहीं, क्योंकि उसका बेस जो है that will be weak. So all of you guys, my message to you is that you should be patient while building the business. लेकिन पेशेंस का एक मतलब बता देता हूँ। कुछ लोग क्या सोचते हैं, काम कम करते हैं और सोचते हैं हमारे अंदर बहुत पेशेंस है। ना 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 ना, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको काम बहुत एग्रेसिवली करना है, रिजल्ट में पेशेंस रखना है। मुझे एक व्यक्ति मिले तो वो कहते थे, वो काम बहुत कम करते थे और कहते सर मुझ में आपने बताया मेरे में बहुत पेशेंस है। तो मैंने कहा आप मेरी बात को गलत समझ गए। आपको काम ऐसे करना है, वो सुपर एग्रेसिवली, बट इन रिजल्ट्स यू हैव टू बी पेशेंट। दैट्स इट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, जितने भी लोग सुन रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेशेंस इज द की, पेशेंट पेस डिविडेंड्स, रिमेंबर। तो सर सुपर ऑसम क्वेश्चन कमिंग अप हियर इज दैट लोगों ने पूछा है, हाउ डिड यू फील when you got to know your check was 1 crore? जो लोगों का सपना होता है, NITs, IITs, टॉप कॉलेजेस में लोगों का ड्रीम पैकेज होता है साल का। How did you feel when you earn the same money monthly in network marketing? कैसा लगा सर आपको? That feeling we want sir. देखो, it was mix of emotions. सर इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपका 100 रुपए का भी चेक था और वो 100 रुपए का चेक आज 1 करोड़ में बदला पर महीना, कैसा लगा सर? और वो भी जनरेशन प्लान में। यस सर। यार डेफिनेटली अच्छा तो लगा, बट ये कहूंगा मैं सरप्राइज नहीं हुआ, या मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि मैं उसको पिछले 5 साल से विजुअलाइज कर रहा था। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अचानक मेरे साथ कुछ हो गया। तो आप शॉक्ड तब होते हो जब अचानक आपके साथ कुछ हो, ठीक है। बट वेन यू आर एक्सपेक्टिंग इट एंड यू आर फोकसिंग ऑन टू इट,
तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब मैं सातवें आसमान पे उड़ गया या मैंने किसी को नीचे मुझे लोग दिखाई देने बंद हो गए, तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। आई वॉज वेरी ग्राउंडेड, आई एम स्टिल ग्राउंडेड। उसका रीजन यही था बिकॉज आई वॉज विजुअलाइजिंग दैट एंड आई वॉज थिंकिंग दैट वो 5-6 साल पहले से जब वो हुआ, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कभी हेड में गया नहीं। और क्योंकि मुझे पता था कि ये होना है, तो इसलिए आई मीन आई कुड हैंडल इट इजीली। सो यस, डेफिनेटली इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, इट वाज अ प्राउड मोमेंट। बट ऐसा कुछ नहीं कि मतलब अब तो दुनिया ही बदल गई, अब तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। बट आई वाज बिकॉज क्योंकि मैं इतनी बार उस चेक को विजुअलाइज कर चुका था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि लाइक समथिंग न्यू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट यस, इट वाज डेफिनेटली एक्साइटिंग। भाई बहुत अच्छा आंसर, बहुत विजनरी आंसर है सर। तो लोगों को विजुलाइज करनी चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए विजुलाइज करोगे तो शॉकिंग नहीं रहेगी, इट विल बी अ कॉमन थिंग। No, 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 no. Superb, sir. Sir, I wanted to ask you the next question here is that, sir, a lot of people get confused between these pyramid companies and who are selling packages, who are making people buy this 15,000, 20,000 packages, और लोग चले जाते हैं. And what is the difference between a good company and a bad, or you can say a pyramid company, sir? What do you say? Because of course इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे. Of course you should guide them because you are right now our inspiration, you are a leader from the front, right? So what would you say your definition towards it, sir? Because इंडिया में सर हर चीज मिलती है आपको. इंडिया में अच्छी चीज मिलेगी तो बुरी चीज भी मिलेगी. कल एक लड़की से बात कर रहा था, बोला मेरे को वैक्सीनेशन मिल रही है, मेरे पापा पॉलिटिशियन है. मैंने बोला क्या बात है, मतलब वी आर नॉट एबल टू गेट नाउ, बट उस लड़की को मिल गया बिकॉज पापा कौन है, पॉलिटिशियन है. सो करप्शन इज एवरीवेयर, सो देयर आर बैड एंड गुड थिंग्स बोथ द वेज. सो नेटवर्क मार्केटिंग का बैड नाम भी होता है, गुड नाम भी होता है. तो बैड नाम वो होता है क्यों है, कारण क्या है सर? दैट वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. या सी जैसे इस टाइप की कंपनीज और एक जेन्युइन कंपनी में क्या फर्क होगा? देखिए, सिंपल सी बात आपने समझनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी आपको क्यों पे करती है, राइट? जो भी आप टर्नओवर क्रिएट करते हो इसके ऊपर आपको पे करती है। अब अगर आप ऐसे सिस्टम में हो जहां पिरामिड सिस्टम में हो, बल्क बाइंग के सिस्टम में हो, जहां प्रोडक्ट या तो है नहीं या सिर्फ नाम का प्रोडक्ट है, वो बिकता है बीवीपीवी या पे आउट के लालच में, तो उसका जो आधार है वो क्या होगा? आप हमेशा दौड़ते रहोगे, राइट? आज दौड़ोगे, जितना आज दौड़ोगे उतना पे आउट मिलेगा, उसमें कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जेन्युइनली प्रोडक्ट नेटवर्क जो है वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता। और उसका आधार क्या है? द आधार और द बेस इज द ग्रीड। सो इट कैन नॉट गो ऑन, राइट? फिर दूसरा उसमें क्या होता है, आपने 2 लोगों के पैसे लगवाए, 2 ने 10 के लगवाए, 10 ने 20 के लगवाए, 20 ने 40 के लगवाए, अल्टीमेटली द बबल बर्स्ट। वाई? क्योंकि उसका जो बेस है वो बहुत कमजोर है, ठीक है? ये है। लोग फिर भी उसकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? बिकॉज अगेन शॉर्टकट मनी, सबको जल्दी है। लेकिन इन चीजों का क्या कोई आधार नहीं होता, इस वजह से ना वहां स्टेबिलिटी आ पाती और वो बात बनती नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप यहां देखते हैं एथिकल कंपनी लाइक वेस्टीज, जहां जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है, वहां क्या है, आप नेटवर्क बनाते जा रहे हो, आपके नेटवर्क में वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, नेचुरली कंज्यूम हो रहे हैं, जिनको आप बीवीपीवी हटा भी दो तब भी उनकी जरूरत है। जैसे आप देखो, लाइक कोई आदमी बिजनेस करे ना करे, लेकिन सबके घर में खाना बनेगा तो उनको कुकिंग ऑयल चाहिए। सबने सुबह उठ के नहाना है, धोना है, शेव करनी है, फिट रहना है, सप्लीमेंट्स लेने, सारी चीजें लेने। तो आज जो हमारे 400 प्रोडक्ट हैं ये जेन्युइनली कंज्यूम होते हैं। बेस्ट डील की और ऐड कर दूं फिर तो कोई अनलिमिटेड स्कोप हो जाता है। एक बार मैं बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लेट 60s और अर्ली 70s की बात है। समवेयर इन यूरोप किसी ने केस किया एक नेटवर्किंग कंपनी के ऊपर में कि ये पिरामिड है। तो बोला जी यार पिरामिड कैसे है? तो उसका जो लॉयर था उसने 2 बड़ी कमाल की बात बोली। उसने जज को अपना बात प्रूव करने के लिए उसने कहा जी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जुड़ गए, अब मान लो कोई भी लोग नहीं जुड़ रहे, आगे नई ज्वाइनिंग खत्म हो जाती है, तो भी क्या आपकी इनकम आएगी? राइट? अगर इस सवाल का जवाब क्या है? अगर जवाब हाँ है, जैसे सपोज करो इस मंथ हमारी कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती, आपका जो नेटवर्क है वो 60% 70% प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो 60% 70% जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपकी जो इनकम आ रही है वो मोर देन 90% इनकम जो है एग्जिस्टिंग नेटवर्क के जेन्युइनली प्रोडक्ट कंज्यूम करने से इनकम आ रही है। तो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ जेन्युइन कंपनी। तो इसलिए वहां पर आप सेफ हो। ये फर्क है एक जेन्युइन कंपनी में और एक पिरामिड कंपनी में। पिरामिड कंपनी किसके ऊपर बेस्ड है? वो हेड काउंट के ऊपर बेस्ड है। भाई इस हफ्ते या इस महीने कितने नए लोग ज्वाइन आए, वो उसी पे कमीशन बांट रहे हैं। पुराने नेटवर्क का एक ही काम है, नए लोगों को लेकर के आना। तो वहां वो चीज सस्टेनेबल नहीं है।
लेकिन जब मान लो सारे लोग जुड़ गए, अब इस महीने कोई नहीं जुड़ता, उसके बाद भी क्या इनकम आएगी? जवाब हाँ है। तो वो कहां से पिरामिड हो गया? वो कहीं से भी पिरामिड नहीं है, राइट? दैट इज व्हाट वन नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग इज, अगर आज कोई ज्वाइन कर रहा है, उसके पास कितना स्कोप है सक्सेसफुल होने का? आप अपना उदाहरण देखो, मैं आपका उदाहरण ही लेकर के चलता हूं। आपको 2 साल हुए हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, राइट? और आज आपका पेचेक 10 लाख रुपए से ऊपर है। मुझे भी इससे ज्यादा समय लगा था यहां पहुंचने के लिए। आप मेरे से बहुत आगे हैं आप, राइट? क्यों? क्योंकि जब आज आप आए, आपके पास में उतने आपने उतने, जब मैं आया था तो मेरे पास 40 प्रोडक्ट थे, आपको एंट्री मिली 250-300 लेवल के प्रोडक्ट से, आपके सामने सक्सेस स्टोरीज बड़ी थी, कंपनी स्टैब्लिश थी। सो इसका आपको एडवांटेज मिला। सो इसलिए जेन्युइन कंपनी में अगर आप काम करोगे तो आप ना सिर्फ आज आपका बेहतर होगा बल्कि कल सुरक्षित होगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को हम कहते हैं कि ये बिजनेस आपके, आप 2 4 5 साल मेहनत करो, नेटवर्क बनाओ, आपको लाइफ लॉन्ग पे करेगा, एंड आफ्टर यू इट विल सर्व योर फैमिली। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। 2008 में मैंने सुदर्शन मोहंती जी को ज्वाइन कराया था, एंड उसके बाद मैंने उनके साथ में उड़ीसा बिल्डअप करना शुरू किया। जब वो उसके बाद अच्छा उनका नेटवर्क बना, बहुत अच्छी उनको सक्सेस मिली। अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ टाइम के बाद में एक रेयर न्यूरो डिजीज हो गया, 2 साल 3 साल उनका इलाज चला, बट ही एक्सपायर्ड। तो उस समय भी उनकी आईडी का चेक 8-9 लाख रुपए था। अब जब वो एक्सपायर हुए, पहली बात तो 2 साल से वो काम नहीं कर रहे थे, तो रेगुलर 8-9 लाख रुपए घर में आए, नंबर वन। नंबर टू, आज उनको गए हुए 3-4 साल हो गए, बावजूद उनके उस आईडी का पेचेक पहले से 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ। तो ये बिजनेस, इसकी इतनी ताकत है, ये आपको, आपके आज को भी देख रहा है, आपके आने वाले कल को भी देखेगा। एंड इट विल सर्व द फैमिली, इट इज नॉट ओनली टू सर्व यू। If you build this business will take care of your not only your entire life but after that also. It is like, जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, हम एक पेड़ लगाते हैं तो आज ही लगाते हैं, हम उसके छाया नहीं देने लगता है, आज ही हमें फल नहीं देने लगता। 2 4 5 साल डिपेंडिंग किस चीज का हमने पेड़ लगाया है, वो केपेबल होता है हमें छाया देने के लिए, फल देने के लिए। शुरू में जब हम पेड़ लगाते हैं, हमें उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है, खाद देना पड़ता है, दवाई लगानी पड़ती है, 500 काम करने पड़ते हैं, उसको उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। 5 साल के बाद में वो बड़ा हो जाता है, वो जिंदगी भर हमें छाया देता है, जिंदगी भर हमें फल देता है, हमारे जाने के बाद हमारी अगली जनरेशन को भी देता है। और मजे की बात यह है, उसके ऊपर इतना ज्यादा शुरू की तरह ध्यान भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो पेड़ खुद मजबूत है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। सुपर सर, सुपर आंसर सर। एक सवाल यहीं पे ऐड करना चाहूंगा, लोग बहुत स्पेकुलेट करते हैं पावर ऑफ जनरेशन प्लान जो आज हम लोग है, और आप इस समय सर इंडिया के सबसे हाईएस्ट चेक हो जिसने जनरेशन प्लान के थ्रू वो किया है। हाउ पावरफुल इज जनरेशन प्लान, जिसके अंदर मैं आप सब लोग इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो डेप्थ में जाके काम किया, आपको पता है उसका पावर क्या है। जैसे जैसे विड्थ बढ़ता रहता है और जैसे वो नॉट डेप्थ के अंदर जब विड्थ बढ़ता है तो उसका कमाल क्या हो सकता है। तो सर व्हाट इज द पावर ऑफ द जनरेशन प्लान अकॉर्डिंग टू यू? सी द पावर, अगेन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये जनरेशन प्लान के अलावा कहीं तो ये उदाहरण हो ही नहीं सकता। पहली चीज तो ये है, राइट? इसी से आप समझ जाओ, फ्रीडम ऑफ टाइम आपको सिर्फ जनरेशन प्लान ही दे सकता है, राइट? बाकी जगह तो यही है भैया, आदमी लाते रहो, आदमी लाते रहो, कब तक लाओगे भाई, उनका क्या होगा? ठीक है, अल्टीमेटली देन व्हाट, पीपल, लोग थकते हैं। तो इसलिए ये जो ताकत है, ये सिर्फ जनरेशन प्लान में। उड़ीसा भवग्रह माझी, वो पिछले 7 साल से व्हील चेयर पर है, 7 साल से व्हील चेयर होने के बावजूद भी उसका जो पेचेक है वो 7 लाख रुपए से ऊपर है। पहली बात तो वो जो व्यक्ति है वो कोई बैंगलोर आईआईएम का नहीं है, वो एक ड्राइवर था, ठीक है, वो ड्राइवरी करता था, इस इंडस्ट्री में आया, इस बिजनेस में आया, सक्सेसफुल बना। उसके बाद में उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, पिछले 7-8 साल से वो व्यक्ति व्हील चेयर पर है, हर महीने 7 लाख रुपए से ऊपर घर लेके जाता है। ये जनरेशन प्लान के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है, आज वन थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला तुझे ये सामान खरीदना है, एक किसी व्यक्ति का 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कराई। मैंने खुद इस बिजनेस को यार 600 रुपए से ज्वाइन किया था, उस समय जेब में सच बोलूं तो पैसे ही नहीं थे, कम से कम 600 रुपए का सामान लेना था, तो मैंने सस्ते सस्ते 2 प्रोडक्ट उठाए, नोनियस प्रोलिना, 605 रुपए, 100 रुपए उस समय रजिस्ट्रेशन के हुआ करते थे, जिसमें आपको फॉर्म वगैरह, बिजनेस प्लान वगैरह मिलता था। तो भाई 600 रुपए की भी, 700 रुपए की भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, उसके मैंने प्रोडक्ट ले लिए। ऐसा दुनिया में आप मुझे कोई बिजनेस बता दो जिसमें आपने लगाया कुछ नहीं, सिखाने के लिए लोग तैयार हैं, मेहनत करोगे तो आपके साथ लोग मेहनत करने को तैयार हैं, और उसके बाद आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दो जो आपको, आपके आज को देखे, आपके कल को देखे, और इट टेक्स केयर ऑफ यू, एंड नॉट ओनली यू, इट टेक्स केयर ऑफ योर फैमिली आफ्टर यू। दैट्स हाउ इट इज।
सुपर सर, बहुत सही बताया सर। इसलिए मैं भी आया था। मैं पहले बाइनरी में काम करता था, 6 साल मैंने किया सर। बहुत फ्लक्चुएशन होता था, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, कभी 1.5 लाख, कभी 25,000, इट वॉज अ बिग। जब से वेस्टीज में आया सर, इवन इन लॉकडाउन, द स्टेबिलिटी सुपर पावरफुल, बहुत ही पावर है। द पावर ऑफ जनरेशन इज टू गुड सर। सर मैं यहीं पे एक एड ऑन करना चाहूंगा। Since you are into network marketing, where do you see network marketing in 2010 years from now? आज से 10 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग कैसी रहेगी, या फिर आप कैसे देखते हो इसको? I mean, it क्योंकि gives 10 me साल पहले goosebumps आपने if I. शायद 10 साल पहले आपने ये नहीं सोचा होगा शायद आप यहाँ पे होंगे, या फिर इतनी बड़ी आज इंडस्ट्री हो जाएगी। आज से 10 साल के बाद इंडस्ट्री कहाँ पे रहेगी सर? यस, 10 years from now, where will the industry be sir? So ladies and gentlemen, जितने भी लोग हैं, yes sir. It gives me goosebumps if I think about what will happen after 10 years. I mean, सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि अगर कहीं पर लैंड करेंगे तो जैसे फ्लीट्स ऑफ कार आती है ना, तो 40, 50, 60 मर्सिडीज आया करेंगी लेने के लिए, राइट। एक काफला टाइप चला करेगा। कितने लोग, अभी मैं मानता हूं कि 1 लाख रुपए से कम जो कमाते हैं उनको मैं मेरी भाषा में बीपीएल बोलता हूँ, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके लिए सरकार 2 रुपए चावल और 2 रुपए में उनके लिए गेहूं देती है, सस्ता राशन देती है। तो मैं कहता हूँ इस बिजनेस में अगर किसी की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है तो वो अभी बीपीएल नेटवर्कर है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला नेटवर्कर है। now 10 साल बाद इसमें एक जीरो और लग जाएगा, उस समय संख्या होगी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए महीने से जो कम कमा रहे होंगे वो बीपीएल वाले लोग होंगे। 10 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लोगों की लाइन लगी होगी, लाइन की लाइन लगी होगी। ठीक है, ये एक सिनेरियो मुझे डेफिनेटली नजर आता है, और ये एक बहुत लुक्रेटिव कैरियर में बदल चुका होगा। आज ही लोग लाइक उदाहरण देने लगे हैं, तब तो मतलब इट विल बी द मोस्ट लुक्रेटिव कैरियर जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। जैसे मैंने आपको बताया 98 में क्या था, चैलेंज क्या था कि नोबडी कुड थिंक कि इस बिजनेस को एज अ कैरियर ले सकते हैं। अब वो सिनेरियो चेंज हो गया है। ठीक है, और हमने ऑटो में भी ट्रैवल किया है, जनरल में भी ट्रैवल किया है, अगर जहां कुछ नहीं रहा तो वहां से हम इस बिजनेस को लेकर के आए हैं। तो देखिए वो एक विजन ही था, या एक सोच थी, भविष्य की सोच थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। नाउ और हर अलग सोचना, जैसे आज आपने मुझे बताया ज्यादातर लोग यूथ हैं जो इस समय सुन रहे हैं। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले कंपनी ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था, इस वजह से उन्होंने अपनी पैकेजिंग को चेंज करा, प्रोडक्ट्स ऐसे लेकर के आए जिससे यूथ कनेक्ट कर सके, ताकि ये एक डैड्स कंपनी ना बन जाए। सो वो एक विजन ही था। सो डेफिनेटली द कंपनी इज वेरी वेरी विजनरी, हर एक चैलेंज को लेकर के चली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपनी इज वेरी ग्रोथ सेंट्रिक। कंपनी ने हमेशा से ग्रोथ के लिए काम किया है। कंपनी ने वो सोचा जो कभी किसी ने नहीं सोचा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब मैंने ज्वाइन किया था तब वाली साहब के पास में सीआरवी हुआ करती थी, तो वो कार मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं सर को बोलता था, मैंने कहा सर कोई भी टारगेट दो, बताओ कितने करोड़ करना है, मुझे अब ये गाड़ी दे देना। तो जब जब मुझे मर्सिडीज मिली तो मेरे उस समय वाली साहब के पास भी मर्सिडीज नहीं थी, वो भी सीआरवी चलाया करते थे। तो आप सोचो उस समय वाली साहब कंपनी का विजन था कि हम एक लग्जरी बुक निकालेंगे, हमारे इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में लग्जरी कार होगी। वो सोचा तब तो वो दिन आया। तो उस समय वो सोच रखना वो एक कमाल था। उसके बाद हम इतने 1000 करोड़ की कंपनी बनेंगे, ये सोच रखना। फिर हम ग्लोबल, मतलब एक इंडियन कंपनी ग्लोबली जाकर के रूल करेगी, टॉप इसमें आएगी, जहां आज हम पहुंचे, तो वो सोच रखना। आज से अभी से 10 साल बाद की सोच रखना। तो ये मैनेजमेंट के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज बीन ग्रोथ सेंट्रिक, एंड सो मेरे ख्याल से इसी चीज से हम इन बातों को का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड के टाइम में भी किस तरीके से चीजों को मैनेज किया गया। आप देखो, मेंटेन नहीं किया, तकरीबन 27,000 लोगों का लेवल कंपनी ने किया, जो रेगुलरली 3 महीने अपना लेवल, जिन्होंने आपका दिसंबर, जैन, फेब या मार्च में कोविड आया था, दिसंबर, जैन, फेब में जिन्होंने अपना लेवल मेंटेन किया था, कंपनी ने अपने पास से उनके लेवल मेंटेन करे। ऐसे 27,000 लोग थे जिनको उस समय छोड़ा नहीं गया, या जिनको कोऑपरेट किया गया, या जिनको साथ लेकर के चला गया। सो ऐसे टफ टाइम में भी तभी हम उसको पार कर पाए। ऐसे टफ टाइम में परमिशंस लेना कि एसेंशियल्स में ये चीजें आए, एसेंशियल्स के लिए प्रेस करना,